side Shubhangi Tiwari from Smart Step Classes, and this video is exclusively going to talk about the entire IELTS test. So guys, IELTS is a test which is conducted by the organization called IDP, right? So in India, only IDP is authorized to take the test for IELTS. IELTS is a language proficiency test जो कि हर उस कंट्री में मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होगा जिस कंट्री में इंग्लिश इज अ कॉमन स्पोकन लैंग्वेज, राइट. आईएल्स टेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो आईएल्स टेस्ट जो है अभी भी सेंटर बेस्ड ही है. इसमें कोई भी इंटरनेट टेस्टिंग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की गई है इंडिया के अंदर. दैट इज वाई देयर इज नो होम एडिशन टू दिस टेस्ट इज अवेलेबल. हालांकि अगर आप पीटीई की बात करें, आप टोफल की बात करें, तो उसमें आपका होम एडिशन एक्सेप्टेबल होता है, बट इन आईएल्स देयर इज नो होम बेस्ड टेस्टिंग विच इज ऑथराइज्ड एज ऑफ नाउ. अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, सो आईएल्स एग्जाम्स के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं. वन इज एकेडमिक एंड सेकंड इज जनरल. एकेडमिक इज जनरली टेकन बाय द स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन ओवरसीज. सो अगर आप अपने एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, वेदर इट इज मास्टर्स, अंडरग्रेड, बैचलर्स, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा, सो आपको आईएल्स एकेडमिक लेना ही पड़ेगा, राइट. आईएल्स एकेडमिक के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं जो कैंडिडेट्स को क्लियर करने होते हैं. LSRW एंड दैट स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. इन 4 मॉड्यूल्स को आपको कवर करके मिनिमम 6.5 बैंड लेके आना होता है. हालांकि लिसनिंग is a 30 minutes of test with 40 questions and the total assessment will happen out of 9 band. Reading is a 60 minutes of test. Again, you have to attempt 40 questions and the band score is going to be 9. Then writing is divided into 2 sections. So writing task 1 and writing task 2. राइटिंग टास्क 1 में आपको कोई भी पाई चार्ट, डायग्राम या कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट अ 150 वर्ड्स कंटेंट इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डेटा. The second writing task happens to be the essay writing. Now essay writing is wherein they are going to give you a topic and on the basis of that topic you are going to write an essay comprising of minimum 250 words, right. इन दोनों टास्क को कंबाइन करके राइटिंग कंप्लीट होता है एंड द बैंड असेसमेंट स्कोर इज गोइंग टू बी आउट ऑफ 9. नाउ ये 3 मॉड्यूल एक साथ कवर किए जाते हैं इन वन गो एंड द स्पीकिंग इज बीइंग टेकन केयर इन अ वन सेपरेट फॉर्म. I, as a trainer or as a test taker, I see it very constructive because speaking का जो टेस्ट होता है वो 10 to 15 minutes के बीच का टेस्ट होता है और इसमें there is no planning, preparation, learning and mugging up which can take place. So spontaneous right approach to the questions is very important, right. So इसमें आपको बहुत ज़रूरी है to have a fresh mind and if it is conducted separately, there are more likely chances that the candidate is going fresh mind and giving the best in their speaking. Speaking का जो section होता है वो 3 parts में divided होता है. First is a general Q&A wherein 5 to 7 questions will be asked from a very regular topic which is related to your life. Second is going to be a cue card which is a kind of an extemple. So here you have to there will be a topic given. 60 seconds will be given to prepare the same and you have to speak up to 1.5 minutes, right. So there are strategies. We have videos uploaded on our channel wherein you can watch the entire video in order to understand that how to control the complete speaking. Part 2. Third part of the speaking is going to be जहाँ पे आपको जो second question का स्टेम्पर का टॉपिक है, let's suppose food है, तो उसी से रिलेटेड आपसे जनरल 4 to 5 questions पूछे जाएंगे and you have to answer them. The total marking is going to be out of 9. So 9 each module और उसका aggregate निकल के आपका एक band score generate किया जाता है and most of the universities accepts the admission if the candidate has managed to get more than 6.5 band score out of 9. Talking about general IELTS. Now general IELTS is a test which is expected to be taken by the candidate, those who are interested in applying for the PR or for the job permit in any of the English spoken countries. अगर मैं इसके मॉड्यूल्स की बात करूं, मॉड्यूल्स सारे सिमिलर होते हैं. LSRW पैटर्न भी सिमिलर होता है. 3 मॉड्यूल्स लाइक LRW आर टेकन इन वन गो एंड स्पीकिंग हैपन्स टू बी इन वन फाइन डे, राइट. सो ये जनरल में भी सिमिलर होता है. द ओनली डिफरेंस इन जनरल एंड इन एकेडमिक टेस्ट इज दैट उसमें आपको 20% का डिफरेंस मिलता है. डिफरेंस कहाँ होता है? लिसनिंग सिमिलर होता है एकेडमिक्स जनरल का, रीडिंग के टॉपिक डिफरेंट होते हैं.
रीडिंग में जहाँ पे आपको अकेडमिक्स में सिर्फ अकेडमिक टॉपिक दिए जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, अकेडमिक के अलावा जनरल में आपको जो टॉपिक दिए जाएंगे वो आपके जनरल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, विच इज कंपेरेटिवली ईजियर देन अकेडमिक, राइट। एंड द राइटिंग पार्ट 1, सो जहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था, यहाँ पे आपको एक लेटर राइटिंग आता है। रेस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द IELTS is absolutely intact and similar, there is no difference, there's just this 20% difference। जनरली अगर बात की जाए तो IELTS का टेस्ट 2 तरीके से किया जा सकता है। आप पेन एंड पेपर टेस्ट बुक कर सकते हैं या फिर आप एक जनरल टेस्ट, आप एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बुक कर सकते हैं। पेन एंड पेपर टेस्ट जब आप बुक करते हैं सो उसके लिए आपको जो रिजल्ट आने का डेडलाइन होता है वो 14 बिजनेस डेज होता है, और जनरल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में आपका जो रिजल्ट आता है वो 4 वर्किंग डेज में आ जाता है। दोनों ही केसेस में जो आपके ETRF है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग रिकॉर्ड, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है IELTS का, वो आपका एनी विच वेज आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद, दैट इज आफ्टर 48 आवर्स ही जनरेट होता है, एंड दैट इज द ओनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द IELTS, राइट। So guys, I hope that this video has given you a lot of information on IELTS. Don't forget to comment, share, like and subscribe our channel, and mention the topic that is confusing you. We'll come up with that next.